Hello and very good morning, class. I hope you all are well. My dear student, I have recorded this class just because of there are few students who are saying that they have issues in some topics of searching and sorting. So here I am come with this Zoom recording class so that you have to watch this video as per your requirement. My dear student, as I told you that shorting and searching is one of the important topics for both point of view. So I am going to record this lecture and upload it on the YouTube so you can watch it as per your convenience. Now, my dear student, without any further delay, I am going to share a doc uh, that is on searching. Okay, my dear student, I have already shared you the screen. Just as I told you that I have already provided you the notes. Here you can see what is searching. Explain different types of searching. क्वेश्चन है कि सर्चिंग क्या है और अलग अलग सर्चिंग टेक्निक्स क्या है. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सर्चिंग इज अ मेथड इन विच वी कैन फाइंड द डिजायर्ड एलिमेंट और गिवन सेट ऑफ एलिमेंट आर सर्चिंग. इट मींस if you want to search anything according to our convenience, or if you want anything from Google, we are simply doing searching. So this is the same thing. Searching is a method in which we can find the desired element. जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी डिजायर है, उस एलिमेंट को उस बहुत बड़े सेट से फाइंड करना, यही है सर्चिंग. There are multiple searching techniques, but in our syllabus we have two types of searching techniques. First one is linear search and other is binary search. So first thing come first, linear search. So what is linear search? As the name suggests, linear means one by one. So if you talk about linear search, in this linear search, it is also called sequential searching algorithm. इसको sequential searching algorithm के नाम से भी जानते हैं. It is the simplest searching algorithm. In linear search, we simply traverse the list completely and match each element of the list with the items whose location is to be found. It means that हम हर उस एलिमेंट को सर्च करते हैं जो भी लिस्ट में है. अगर वो एलिमेंट हमें लिस्ट में मिल जाता है तो हम अपनी सर्चिंग को सक्सेसफुल मानते हैं, और अगर हमको वो एलिमेंट नहीं मिलता है देन वी हैव टू से दैट वी गॉट नल. द वैल्यू हम क्या रिटर्न करते, नल. तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है. लाइक ये डेफिनेशन लिखी हुई है. सर्चिंग, linear search is an algorithm as a sequential search algorithm. It is the simplest algorithm in linear search, as we simply traverse the list completely and match each element in the list with the item whose location is to be found. It means that आपको जो भी लोकेशन पे एलिमेंट मिलता है आप उसको लोकेशन को रीड कर लेंगे. हमने आपको पहले ही बताया था कि एलिमेंट्स की जो लोकेशन होती है एरे में वो स्टार्ट होती है जीरो से. कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से. सो अगर हम इस एलिमेंट की इस लिस्ट की बात करें, इस एरे की बात करें, तो सपोज मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है 3, 8, 12, 6, 10, 2, और मुझे जो सर्च करना है यानी जो हमें वैल्यू चाहिए या जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू है की है वो है 6. तो सबसे पहले हम लोग इसको 3 को सर्च करेंगे, 3 पर जाएंगे कि और मैच करेंगे क्या वैल्यू हमारी डिजायर्ड वैल्यू है, डेफिनेटली नहीं है. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वैल्यू दैट विल 8. फिर इट विल चेक क्या ये वही वैल्यू है जो हम चाहते थे, डेफिनेटली ये वो वैल्यू नहीं है. देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे दैट इज 12. क्या ये वही वैल्यू है, हाँ ये वही या वही वैल्यू है, नहीं, बिकॉज वी वांट 6. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 6. क्या चेक करेंगे क्या ये वही वैल्यू, हाँ ये वही वैल्यू है. इस तरीके से हम लोग वन बाय वन करके अपनी डिजायर्ड वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं. आई होप माय डियर स्टूडेंट यू गेट द पॉइंट. सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी सिंपल प्रोग्राम so that you can easily understand this concept. My dear student, प्रोग्राम बनाने से पहले
मैं एक छोटा सा आपको एक डेमो देना चाहूंगा कि किस तरीके से हम लोग लीनियर सर्च को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, राइट। तो वेट वेट वेट, मैं एक छोटी सी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, ये देखिए, सपोज मेरे पास एक छोटी सी एरे है। लाइक मैंने एक छोटी सी एरे बना ली, ए आर नाम की मैंने एक एरे बना ली, जिसमें मैंने कुछ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले ली। सपोज मैंने 5 एलिमेंट ले लिए। सबमिट करो। ओके, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट। फिर देन लिया। द then I will take few more lines so for better understanding. Like मैं एक एरे बना लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कुछ एरेज में कुछ वैल्यू दे रखी है, राइट। अच्छे ट्रेड ट्रेड। सपोज यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू दे दी 5। लॉक चैट लगा दे। नेक्स्ट वैल्यू मैंने दे दी 67। नेक्स्ट वैल्यू दे दी 45। नेक्स्ट वैल्यू दे दी मैंने 33। नेक्स्ट वैल्यू दे दी, सपोज कोई भी रैंडम वैल्यू, वी कैन सेलेक्ट एनी रैंडम वैल्यू, सपोज 69। नेक्स्ट वैल्यू मैंने ले ली, दैट इज 41। एंड नेक्स्ट वैल्यू ले ली 90। तो ये मेरी एक एरे है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। और आपको पता है इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है 0 से। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू हो गई 0, ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सपोज मुझे जो वैल्यू सर्च करनी है वो है 33। तो जो मैं सर्च वैल्यू लेता हूँ दैट इज की, मैं इसको नाम देता हूँ की। जो की मेरी वैल्यू है वो है 33। तो ऑब्वियसली वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरोथ इंडेक्स। हम जीरोथ इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट गो टू जीरोथ इंडेक्स एंड फाइंड द वैल्यू। सपोज एरे का नाम ए आर है, इसका मैं नाम ए आर दे देता हूँ, एरे का नाम। ओके, तो अब इस एरे से वैल्यू सर्च करना स्टार्ट करेगा। ए आर जीरो की वैल्यू क्या की के बराबर है? ए आर जीरो की वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली 5 है। क्या की के बराबर है? डेफिनेटली नहीं है, नहीं है। इसके बाद हम लूप के थ्रू आगे बढ़ जाएंगे, फिर ए आर वन को सर्च करेंगे। ए आर वन की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा मुझे? यस, ए आर वन की वैल्यू आप देख सकते हैं हमारी एरे में क्या है, 67। क्या है? 67। ओके, क्या ये की के बराबर है? की वैल्यू 33 है। नहीं, नॉट, नॉट। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे एरे ऑफ 2 पर, राइट। एरे ऑफ 2 पर, दैट इज 45। क्या ये की के बराबर है? नो, इट इज नॉट इक्वल्स टू 45। देन अब सर्च करेंगे एरे ऑफ 3, जिसकी वैल्यू क्या है? 33। क्या की वैल्यू मैच कर गई? यस, ये मैच कर गई। देन हम ऑर्डर नोट कर लेंगे, इसकी एरे का इंडेक्स क्या है, दैट इज एरे इंडेक्स 3। एरे इंडेक्स 3 पे हमको ये वैल्यू मिली है। देन वी विल से दैट यस, फाउंड, सर्च इज फाउंड। ओके, नाउ हम एक काम करते हैं, इस एल्गोरिदम को अगर आप समझ गए हो तो इसके बाद मैं एक आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ। इसका प्रोग्राम मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। लाइक एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आईडी खोल लेता हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसकी मैं स्क्रीन में आपको शेयर कर देता हूँ। मैं एक आईडी खोल दी मैंने, देवसी सॉफ्टवेयर, आपको मैं लैब में प्रैक्टिकल करा चुका हूँ उनसे। तो यू कैन सी दैट
So first of all, I will going to add this header file, that is hash include std. Okay, now simply ये मैं कोडिंग कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। अब क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ वेरिएबल में एक एरे ले लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को इजी बनाना है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूं। मैं सपोज 6 एलिमेंट ले लेता हूं एरे में, जिसका साइज 6 एलिमेंट है। आपको पता है एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ वैल्यूज दे देता हूं। सपोज 12, 34, 40, 56, 90 एंड 89। देखिए 6 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5, एक एलिमेंट और ले लेता हूँ, सपोज 23। ओके, ये 6 एलिमेंट्स हो गए। नाउ व्हाट आई वांट दैट आई नीड टू सर्च एन एलिमेंट। सपोज मुझे एलिमेंट सर्च करता है 90 इंट, यानी की वैल्यू क्या हो गई 90, क्या हो गई 90। तो इसका मतलब एक मैं छोटा सा मैसेज देता हूँ, और यहाँ पे मैं मुझे एक एरे इनिशियलाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे फॉर लूप की हेल्प से इसको चलाऊंगा। ओके, तो मैंने एक आई इसको 0 ले लिया। अब फॉर लूप से मैं करता हूँ फॉर आई इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है एरे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, से लेकर के आई इज लेस देन 6, यानी कि इसका साइज 6 है, तो इसका मतलब 0 to 5 तक एरे चलेगी। ओके, एंड आई प्लस प्लस, इसको मैं डबल कोट्स में डाल देता हूं। ओके, अब मैं सर्च कराता हूं इफ एरे ऑफ आई, क्या एरे ऑफ आई की वैल्यू इक्वल है की के। इफ यस, अगर ये वैल्यू मैच हो जाती है, राइट डाउन, यहां पर एक वेरिएबल ले लो इंट फ्लैग इज इक्वल टू 0। फ्लैग की वैल्यू 0 डिक्लेयर करते हो जैसे फ्लैग की वैल्यू 1 होती है। फ्लैग इज इक्वल्स टू फ्लैग प्लस प्लस 1। जैसे ये वैल्यू 1 होती है, ऑटोमेटिकली हमारा लूप कन्वर्ट हो जाए, हम यहां से निकल आएंगे। ओके, और यहां से कर दीजिए ब्रेक। ओके, अब मैं लूप से बाहर आ गया हूं, ये एंड ऑफ लूप है, एंड ऑफ फॉर लूप। अब यहां पे चेक करते हैं इफ फ्लैग की वैल्यू 1 है, फ्लैग डबल इक्वल्स टू 1, देन अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, देन तब क्या होगा, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हमारा एलिमेंट मिल गया। प्रिंट एफ, आपको पता प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ हम उस एरे का ऑर्डर लिख देंगे, डेट इज जो भी प्लेस पे हमको मिला है वो। फाउंड, वरना में से अगर फ्लैग 1 नहीं है तो एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ कोड। आई एम जस्ट राइटिंग द वेरी सिंपल कोड टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, मैंने क्लास में इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, बट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको सेव कर देता हूँ कोड को। मैं इसको नाम से सेव कर देता हूँ, सपोज डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, तो नाम दे देता हूँ सपोज मैं लीनियर सर्च। हो गया, मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ, पहले इसको कंपाइल करा लेता हूँ। एलिमेंट फाउंड, देखिए एलिमेंट फाउंड हो गया। ठीक है, मैं अब की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं की वैल्यू कर देता हूँ
78 सपोज, ओके। अब इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, कंपाइल कराता हूँ, के बाद इसको रन कराता हूँ। देखिए डिजायर्ड एलिमेंट नॉट फाउंड। आप देख सकते हैं इतनी इजीली मैंने एलिमेंट्स को सर्च करा लिया। तो ये बहुत ही बेसिक कोड है। आप लोग चाहे तो इसका स्नैप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड द लीनियर सर्च। नाउ लेट्स बैक टू द बाइनरी सर्च। So binary search is another popular searching algorithm. I am just going to share you the doc like this. I think you people have easily see this. Binary search. The binary search is searching technique in which searching is done only by the array arranged in ascending or descending order. इसका मतलब ये मेरे बच्चों कि जब भी हम बाइनरी सर्च को परफॉर्म करते हैं, हमारा एरे डेफिनेटली एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। दिस सर्चिंग एल्गोरिथम ओनली वर्क्स व्हेन द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस एल्गोरिथम इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। ये एल्गोरिथम डिवाइड एंड कॉन्कर पर बेस्ड है। द शॉर्टेड एरे इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट बाय फाइंडिंग द मिड वैल्यू। बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इसकी मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसको मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज ओके, मैं एक व्हाइट बोर्ड आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, ओके, सो मैं यहाँ पर एक एरे लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक एरे लेता हूँ। ओके, जिसको मैं 6 एलिमेंट की एरे लेता हूँ सपोज। दूसरी एरे हो गई, तीसरा एलिमेंट हो गया, मैं तो बच्चों यहाँ पे मैं कुछ एरे ले लिए हैं जिसकी कुछ लॉजिकल ऑर्डरिंग हो जाएगी, जिसका मैं एक नेमिंग कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अ, इसकी इंडेक्स हो गया 0, सबकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इंडेक्स वैल्यू तक कंफ्यूजन ना हो। ये इंडेक्स वैल्यू 0 हो गई, ये इंडेक्स वैल्यू हो गई 1, इंडेक्स वैल्यू हो गई 2, इंडेक्स वैल्यू हो गई 3, इंडेक्स वैल्यू हो गई 4, इंडेक्स वैल्यू हो गई 5, इंडेक्स वैल्यू हो गई 6, इंडेक्स वैल्यू हो गई 7। इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे बच्चों कि जब भी हम लोग बाइनरी सर्च करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू रखनी है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना होगा। लाइक उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखता है। यानी कि हम इसमें रैंडम, जैसे हम लोगों ने लीनियर सर्च में डेटा को रैंडम वे में रखा था, उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी मैं एक एरे बना लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में एरे डाल देता हूँ, 12, 23, 30, 45, 50, 67, 88, 95। मैंने कुछ भी नंबर ले लिया, राइट। तो ये एक एरे हो गई। ओके, सो
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी एक एल्गोरिदम देखनी होगी, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद हो मैंने क्लास में बताया था, जो लोवेस्ट वैल्यू होती है इसको बोल देते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं लो या लो वैल्यू, जिसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है इसको क्या मानेंगे, लो। क्या मानेंगे, लो। तो इसकी जो 0 वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू, वो है 0 इंडेक्स। और इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है ऑब्वियसली क्या है, 7। क्या है, 7। हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है, 7। आप ये देख सकते हैं। अब हम निकालते हैं मिड। क्या निकालते हैं, मिड। तो मिड इक्वल्स टू क्या होता है, लो। फॉर्मूला होता है मिड निकालने का, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। तो बच्चों ये एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमारी गिवन एल्गोरिथम में लो 0 है और हाई 7 है। अब इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर को अप्लाई करेंगे। एक बात याद रखिएगा मेरे बच्चों कि ये जो मैंने ऑर्डर लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने एरे को ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहले सपोज मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे जो की फाइंड करना है, जो सर्च करनी वैल्यू, सपोज वो 50 है। क्या है, 50। ये मुझे वैल्यू सर्च करनी है, वो 50 है। मुझे जो वैल्यू सर्च करनी है वो 50 है। तो अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मिड फाइंड करेंगे। तो अब मुझे बता सकते हैं इसका मिड क्या होगा। ओके, मैं सर्च करता हूँ मिड की वैल्यू। तो मिड की वैल्यू होगी यहाँ पर 0 प्लस 5/10। ओके, तो मिड हमारा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0th इंडेक्स प्लस 7 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय डिवाइड बाय सॉरी 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 सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया। हम्म, तो मिड इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 7/2। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3.5। 3.5। सो वी हैव टू रिमूव दिस पॉइंट पार्ट। हम इस पॉइंट पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, 3.5 में हम लोग पॉइंट पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। एंड वी विल टेक 3। वी विल टेक 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरे ऑफ 3। मैं इसको एरे को 3 मानता हूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरे ऑफ 3। हमारी एरे ऑफ 3 क्या है, एरे ऑफ 3 है 45। और मैंने आपको बस कुछ देर पहले बताया था कि मैंने क्या मान रखा है, 50। मैंने सर्कल भी कर दिया था इसीलिए। चाहे तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार लिख भी देता हूं। तो जो मेरी की है वो चल रही है, दैट इज 50। 50 इसको मुझे सर्च करना है, की मीन्स वो वैल्यू जो मुझे सर्च करनी है। अब ये बताइए क्या ये वैल्यू मुझे मिल रही है, नहीं, ये वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है। मैं सर्च करूंगा क्या ये वैल्यू की वैल्यू मिड से, एरे ऑफ मिड के बराबर है। ये एरे ऑफ मिड जो है यानी 3 जो है उसके बराबर है। एरे ऑफ मिड, इसको हम एरे ऑफ मिड का नाम दे देते हैं, एरे ऑफ 3 की जगह एरे ऑफ मिड का नाम दे देते हैं, दैट इज 45। क्या एरे ऑफ मिड, क्या एरे ऑफ मिड की के बराबर है। आपको पता है कि की वैल्यू 50 है और एरे ऑफ मिड की वैल्यू 45 है। क्या ये वैल्यू मैच कर रही है, नो, ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब मेरे पास ये जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं राइट साइड से 50 के, ये सारी की सारी डिस्कार्ड हो जाएंगी। यानी अब हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो 50, वो 45 से ज्यादा है। और वो सारी की सारी इस यहां तक नहीं मिलेगी। ओके, तो अब मैं अपना मिड चेंज करूंगा, मेरा लो भी चेंज हो जाएगा और हाई भी चेंज हो जाएगा, यानी मुझे इन पार्ट को ट्राइवर्स नहीं करना है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना लो, अब मेरा जो लो हो जाएगा वो क्या होगा, कोई बताएगा। यस, अब मेरा लो हो जाएगा एरे ऑफ, मेरा हो जाएगा जिसकी इंडेक्स 4 है। और मेरा हाई ऑब्वियसली वही रहेगा लास्ट वाला, दैट इज 7। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, उसका मिड फाइंड करता हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, लो प्लस हाई अपॉन 2 दैट इज 4 प्लस 7/2। कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, यस 11/2 दैट इज 5.5। अगेन हमें डेसिमल वाला पार्ट रिमूव करना होता है, होल नंबर पार्ट रखते हैं, दैट इज 5। अब मैं चेक करूंगा क्या मुझे वैल्यू 5 पे मिल रही है। ये देखिए वैल्यू 5 पे, एरे ऑफ मिड की वैल्यू चेक करते हैं। एरे ऑफ मिड अब क्या हो चुका हमारा,
एरे ऑफ मिड हमारा क्या है, हमारा एरे ऑफ मिड है 67। देख सकते हैं आप, ये एरे ऑफ मिड की वैल्यू कितनी है, 67। और ये बताइए की वैल्यू मेरी क्या है, अभी भी 50 है। क्या एरे ऑफ मिड 50 के बराबर है? चेक करते हैं, ये कंपैरिजन करके देखते हैं एक बार जरा। क्या एरे ऑफ मिड जिसकी वैल्यू क्या है अभी फिलहाल चल रही है 67, क्या वो हमारी की वैल्यू के बराबर है? नो, अभी की के बराबर नहीं है। बट आपको एक बात पता चल गई कि जो मिड वैल्यू है वो ग्रेटर है, वो क्या है, ग्रेटर है। तो अब मैं क्या कर लूंगा, मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक फोर्ट एक फिफ्थ एक इसका मतलब ये वैल्यू 67 पे भी नहीं है, यानी इसका मतलब ये है इसके पहले जो वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी मेरे लिए किसी काम की नहीं है। इसलिए मैं इन वैल्यूज को भी डिस्कार्ड कर दूंगा, 67 से जो भी पहले वैल्यूज आई हैं वो मेरे किसी काम की नहीं है, राइट। तो मैं इनको डिस्कार्ड कर दूंगा, लाइक एक सेकेंड, ओके, वो मेरे किसी काम की नहीं है, ये 95 मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जो वेरी डिजायर्ड वैल्यू है वो उससे बड़ी है। ओके, अब ये बताइए, जब मेरी वैल्यू अब मेरी मिड वैल्यू क्या आ गई, 5, क्या आ गई, 5। ओके, 5 पे भी मुझे वैल्यू नहीं मिली थी, इसका मतलब मेरी मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। यानी मेरी मिड की वैल्यू हो जाएगी मिड इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1। मिड माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 5 माइनस 1, दैट इज 4। और यही मेरी की होगी, यानी कि अब मैं मिड को चेक करूंगा, दैट इज एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड इज इक्वल्स टू की, यही मेरी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो एरे ऑफ मिड की वैल्यू भी 4 है और की वैल्यू भी 50 है। ओके, यानी कि दोनों वैल्यूज मैच हो रही हैं 50। तो आप समझ सकते हैं कि अब हमारा आंसर मैच हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू वर्क। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर स्टिल यू हैव प्रॉब्लम देन यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, यू विल फाइंड आउट द सोल्यूशन। अब इसका मैं प्रोग्राम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।